हेलो स्टूडेंट्स, जो अभी तक जो हमने बताया आपका उसका आगे का कंटिन्यूशन में ये लेसन पढ़ा रही हूँ। ये पार्ट 2 इसको लीजिए। पहले का जो है वो पार्ट 1 था, क्योंकि बहुत बड़ा लेसन है इसलिए इसके पार्ट बाय पार्ट इसको डिवाइड किया गया है। तो आगे देखिए। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put into the fire to be ready to put on the anvil. Every now and then one of them got up to start the gluing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration, though, as well as the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fire boy solved charcoal into the new of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the very people of his time unusually did, with a long beard, dirty ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. The tramp did not say anything either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. क्रिसमस के कुछ समय पूर्व एक बड़ी अंधेरी शाम के दौरान मुख्य लोहार और उसका शहर आग के कुंड के पास एक अंधेरी जगह पर बैठे थे और निहाई पर डालने के लिए कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद उनमें से एक लंबी लोहे की सलाख लिए हुए दहकते हुए ढेर को हिलाने के लिए खड़ा होता था, फिर कुछ क्षण में लौट आता था, पसीने से तर-बतर हो जाता था। फिर जैसे कि उसे आदत था, उसने एक लंबी कमीज और लकड़ी के जूतों के एक जोड़े के अतिरिक्त कुछ पहना नहीं होता था। भट्टी में हर समय वहां पर कोई आवाजें सुनने को मिलती थी। बड़े बड़े धोखने के कहराने की आवाज और जलते हुए कोयले के टूटने की आवाज आती थी। आग जलाने वाला लड़का भट्टी के मुंह में कच्चा कोयला बेलने की मदद से फेंकता था और इससे बड़ी खड़खड़ाहट की आवाज आती थी। बाहर की तरफ झड़ने के गरजने की आवाज आती थी और तेज उत्तरी हवाएं ईंट की टाइलों वाली छत के ऊपर वर्षा के थपड़े जोर जोर से लगाती थी। शायद इन सभी शोर से लोहार को इस बात का पता ही नहीं चला कि एक आदमी दरवाजा खोलकर भट्टी के अंदर बिल्कुल नजदीक आकर खड़ा हो गया था। निश्चित ही यह कोई साधारण बात नहीं था कि गरीब बेघर आदमी जिनके पास रात बिताने के लिए कोई बेहतर शरण नहीं होता था, वे भट्टी की तरफ आकर्षित होकर चले आते थे। उस रोशनी की चमक के कारण जो धुएं से काले हुए शीशे में से बच निकालती थी और वे आग के सामने स्वयं को गर्म करने के लिए वहां अंदर आ जाते थे। लोहारों ने उसे बिना पूछे अंदर आने वाले की तरफ केवल गैर रस्सी ढंग से तथा असावधानी से देखा। वो देखने में वैसे ही लगता था जैसे कि दूसरे जैसे लोग लगते थे। लंबी दाढ़ी वाला, गंदा फटे चित्रे पहने हुए और उसका छाती पर चूहेदानियों का एक गुच्छा सा लटकता था।
वो यहाँ रुकने की इजाजत मांगा और मुख्य लोहार ने सिर हिलाकर उसके स्वागत में जोरदार हाँ बोल दिया। उस घूमने वाले आदमी ने कुछ भी नहीं कहा। वो वहाँ बातें करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को गर्म करने के लिए और सोने के लिए आया था। In those days, the Ramsujo iron mill was owned by a very prominent iron master, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. And at this very moment, he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. The iron master did not follow the example of the blacksmiths who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. But of course it is you, Nils Olof, he said. How you do look. The man with the rat traps had never before seen the iron master of Ramsuju and did not even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kronor. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. You should not have resigned from the regiment, said the iron master. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. उन दिनों रामसुजो आयरन मिल का मालिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोहा मालिक आयरन मास्टर था, जिसकी सबसे बड़ी इच्छा ये होती थी कि बाजार में अच्छा लोहा भेजा जाए। वो दिन रात दोनों पर ध्यान रखता था कि काम जितना संभव हो सके अच्छे ढंग से हो, और इसी बीच रात के समय वो भट्टी में आ गया। स्वाभाविक रूप से उसने सबसे पहली यह बात देखा कि वो फटीचार हाल वाला व्यक्ति जो आराम से भट्टी के इतने नजदीक था, उसके गीले कपड़ों से भाप उड़ रही थी। आयरन मास्टर ने लोहारों वाले उदाहरण का अनुसरण नहीं किया, जिन्होंने अजनबी की तरफ देखने की मुश्किल से कोई इच्छा की थी। वह उसके और नजदीक गया, ध्यान से उसको देखा, फिर उसको ठीक से देखने के लिए उसकी टोपी को खींचकर हटा दिया। निस्संदेह यह तो तुम हो, नील्स अलोफ, उसने कहा। तुम देखने में कैसे लग रहे हो? चूहेदानिया वाले व्यक्ति ने रामसुजो के आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा और उसका नाम भी नहीं जानता था, लेकिन उसके दिमाग में यह बात आया कि यदि वो सभ्य व्यक्ति उसे एक पुराना परिचित व्यक्ति मानने लगे तो शायद उसे कुछ करोड़ भेंट कर दे। इसलिए वो एकदम से उसका भ्रम नहीं तोड़ना चाहता था। हाँ, ईश्वर जानता है मेरी हालत खराब होती गई, उसने कहा। तुम्हें रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था, आयरन मास्टर ने कहा। एक्चुअली आयरन मास्टर ने उसको क्या समझा था कि वो रेजिमेंट में काम करने वाला कोई कैप्टन है, जो मतलब रेजिमेंट को छोड़कर आ गया था, इसलिए उसने अपना पहचान का ही कोई व्यक्ति उसने समझ लिया था। वही गलती थी। यदि मैं उस समय भी नौकरी में रहा होता तो ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। आयरन मास्टर उसको अपना पहचान का व्यक्ति समझकर वो उसको अपने घर जाने के लिए कहा। To go along up to the manor house at he received by the honor like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. He thought of the 30 kronor. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge
and then sneaked away as inconspicuously as possible. The ironmaster assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. He said, Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are aboard, and there is no one at home except my oldest daughter and myself. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. But the stranger said no and again no, and the ironmaster saw that he must give in. It looks as though Captain Von Strathel preferred to stay with you tonight, Sturgerston, he said to the master blacksmith, and turned on his heel. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. आयरन मास्टर को हवेली में जाना और आयरन मास्टर की हवेली में जाना और एक पुराने रेजिमेंटल साथी के समान मालिक से स्वागत प्राप्त करना, यह बात सचमुच उस धुमक्कड़ व्यक्ति को अच्छी नहीं लगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, उसने कहा, चिंतित अंदाज में कहा। वो 30 करोड़ के बारे में सोच रहा था। आयरन मास्टर के घर जाना मतलब स्वयं को अपनी इच्छा से शेर की गुफा में फेंकना। वो सिर्फ यहाँ भट्टी में सोने का मौका चाहता था और फिर जितना संभव हो सके चुपके से वो चला जाना चाहता था। आयरन मास्टर ने मान लिया कि वो अपने घटिया कपड़ों के कारण लज्जा अनुभव कर रहा था। कृपया ऐसा मत सोचो कि मेरा इतना अच्छा घर है कि तुम वहां स्वयं को नहीं ले जा सकते, उसने कहा। एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है, जैसा कि तुम पहले सुन लिए होंगे। यानी एलिजाबेथ आयरन मास्टर की पत्नी का नाम। मेरे बेटे विदेश गए हैं और घर पर मेरी बड़ी बेटी और मेरे सिवाय वहां पर कोई नहीं है। हम ऐसे कह रहे थे कि क्रिसमस पर हमारे पास कोई साथ देने के लिए नहीं था। आप मेरे साथ आओ और क्रिसमस के भोजन का जल्दी खत्म करने में हमारी मदद करो। मतलब वो बता रहा था कि क्रिसमस में आकर हमारे साथ तुम भोजन लो। लेकिन अजरोबिन ने कहा नहीं और फिर नहीं कहा, और आयरन मास्टर ने देखा कि उसे हार माननी होगी। ऐसा लगता है सर्जन स्टाम की कप्तान वोन स्टेहल आज रात तुम्हारे साथ ही ठहरना उचित समझता है, उसने मुख लोहार से कहा और उल्टे पांव चला गया। किंतु जब वो वहां से गया तब उसने आप में ही हंस दिया तथा लोहार जो उसे जानता था बहुत ही अच्छी तरह से समझ गया कि उसने अभी अपना अंतिम शब्द नहीं कहा था। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. But this time it was not the ironmaster. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. She entered, followed by a valet, carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. In the forge everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. The stranger had stretched himself out of the floor and lay with a piece of big iron under his head and his head pulled down over his eyes. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his head. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. My name is Elizabeth Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here
in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something or else he was escaped from jail, she thought, and added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you can. Only please stay with us over Christmas Eve. She said this in such a friendly manner that the rat-trap peddler must have felt confidence in her. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं हुआ होगा जब उन्होंने भट्टी से बाहर की तरफ एक बगदी में पहियों की आवाज सुनी और एक नया मेहमान अंदर आ गया। लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं था, उसने अपने बेटी को भेजा था, स्पष्ट रूप से यह आशा करते हुए कि स्वयं उसकी अपेक्षा वो उसे मारने के लिए बेहतर समर्थ रखती होगी। वो अंदर आ गई। उसके पीछे पीछे एक सेवक था जो अपनी बाहों के ऊपर एक बड़ा फर कोट पकड़े हुए था। वो दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी, लेकिन विनम्र और लज्जाशील लग रही थी। भट्टी के अंदर हर चीज बिल्कुल वैसी थी जैसे पहले शाम के समय था। मुख्य लोहार और उसका शहर अब भी अपने बेंचों पर बैठे हुए थे और भट्टी में लोहा और कच्चा कोयला अभी भी दहक रहा था। अजनबी स्वयं फर्श पर लेटा था और अपने सिर के नीचे लोहे का एक टुकड़ा रखा था और अपनी टोपी को अपनी आंखों के ऊपर खींच रखा था। जो ही युवती की नजर उस पर पड़ी, वो उसके नजदीक गई और उसकी टोपी उठा दी। उस आदमी की आदत एक आंख खोलकर सोने की थी। अचानक उछलकर वो खड़ा हो गया और बहुत डरा हुआ लग रहा था। मेरा नाम एडला विल्समेंसन है, युवती ने कहा। मेरे पिता घर पर आए थे और उन्होंने कहा कि आप आज रात यहाँ भट्टी में सोना चाहते थे। फिर मैंने उनसे अनुमति मांगी कि यहाँ आकर आपको अपने साथ घर ले जाओ। कप्तान साहब, मुझे बहुत दुख है कि आपका इतना खराब समय चल रहा है। उस लड़की ने उसकी एक तरफ भारी आंखों से दयालुता की भाव से देखा कि वो व्यक्ति डरा हुआ लग रहा था। या तो उसने कोई चीज चुरा ली है या जेल से भागा है, उसने सोचा और फिर जल्दी से बोली, कृपया आप इस बात का विश्वास कीजिए कि आपको वहां से जाने की उतना ही आजादी होगी जितने वहां आने की। कृपया हमारे साथ क्रिसमस के अवसर पर रुकिएगा। उसने ये बात इतने विनम्रता पूर्वक ढंग से कही कि चूहेदानी की फेरी लगाने वाले व्यक्ति को उस पर निश्चय भरोसा हो गया होगा। मैं यह बात कभी सोच नहीं सकता था, देवी जी, कि आप मेरे लिए स्वयं इतना कष्ट उठाएंगी। उसने कहा, मैं अभी आपके साथ चलूंगा।